Okay. Hello. Yes. Now is it audible? Yes. Okay, fine. Can you see my screen? Could you please explain this 20 is what of percent of 50 is equal to 20 bar 50 into 100. Okay, could you please explain once, madam? Okay, fine. I will explain this. Yes, Okay. Okay. Let Vaishali join. Okay. Okay, fine. See, 20 by 50. Okay, the simple, like how we can solve this. Wait a minute. Now see. 20 by 50 into 100. Okay, so I have to cancel out this. Okay, and the simple formula is 40%. Okay. Right, but the other way to solve this sum is 20 divided by 50. This both 0 will get cancelled, and 2 I can write the same thing like this. Yes or no? Yes, madam. Yeah. 2 into 1 by 5. 1 by 5 means what? I told you in my earlier slide. 1 by 5 means 20%. Can you see this? Yes, madam. Yeah. All right. So when I'm saying that it is 20%, so yahan pe I will give this 20%. So my answer will be 40%. Fine. Is this clear? All right. Yes, ma'am. Likewise, okay. Likewise, when I'm saying that 50% of 20. All right. Okay. 50% of 20. So how will you calculate? See, 50 divided by 20. So I can say 5 multiplied of 1 by 2. I can write the amount like this. Okay. 5 into 1 by 2. So now half is what? Yes. Right. Okay. Half is, see, half is 50%. Okay. Okay. So I will write here 50%. So the total percentage will be 250%. Yes. Fine. समझा? हम लोग सीधा हम लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, right? Or you can do like this. Okay. ठीक है? Next. Yes, ma'am. Next question is, okay. Now you can hear me properly, Vaishali? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now, when I'm telling this, 20 is what percent less than 50? 20 is what percent less than 50? तो मेरा प्रॉब्लम क्या होता है? My sum is 50 and 20. तो 50 से 20 कितना लेस है? 30. राइट, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 30. राइट. What is my base? 50 into 100. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. ये दोनों को हटा दो. 3 1 by 5. 1 by 5 का कितना है? 20%. तो 60% आ गया. समझा? ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ 50 is what percent more than 20? 50 is what percent more than 20? तो डिफरेंस तो 30 का ही आ रहा है. Yes, ma'am. बट यहाँ पे बेस कितना हो रहा है आपका? 20. यहाँ पे फर्स्ट में बेस कितना था? 50. यहाँ पे आपका बेस वैल्यू क्या है? 20. राइट. तो 3 1 by 2.
मतलब 3 into 50%, that means 150%. Is this clear? तो इसका आंसर कितना आ रहा है 60% और इसका आंसर कितना आ रहा है 150%. Is this clear? Yes, madam. Yeah. राइट तो हमने यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, इसको कैंसल आउट करके, ठीक है, इसको कैंसल आउट करके, बट ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, आगे ये ट्रिक आपको यूज होगा. आप अगर कौन सा भी करने के लिए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं. फाइन. Fine. Yes, madam. ठीक है, चलो अभी हम लोग सम्स देख लेते हैं फटाफट. नाउ दिस इज द सम. 28% of 450 plus 45% of 280. Tell me what will be the amount. तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, you will sit and you start counting 28% of 450, फिर 45% of 280. तो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि x% of y is equal to y% of x. Yes. यस तो अभी हाल फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे, 28% ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 28. सेम लग रहा है आपको, राइट? तो मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका जो भी आंसर आएगा इसका भी वही आंसर आएगा, यस और नो? Yes, madam. ठीक है, तो मतलब मैंने क्या लिखा है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, राइट? तो मेरा अगर इसका कुछ भी आंसर आया, द सेम आंसर विल बी दिस. तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर एक का आंसर 1 आया तो दूसरे का आंसर हम लोग प्लस करके उसका भी 1 आकर मेरा टोटल आंसर मिल जाएगा. Yes or no? Yes, madam. Okay. आवाज आ रहा है अभी आप Yes. लोगों को? Yes, ma'am. yes. Clear voice. Okay. Now अभी अगर यहाँ पे देखेंगे 45, ना 45% को हम लोग लिखेंगे कैसे, 50% माइनस 5%. सी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल देख रहे हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कम टाइम पे कैसे करके कर सकते हैं. आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है, you are having your traditional method, जो क्या है 28%, 28 divided by 100 into 450. It is always there, right? You can apply this. इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, right? 2 से इसको 9, इसको कट करके इसको 14. So you are having this method. But और कौन सा तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, हम लोग वो भी देखेंगे. Is this clear? ठीक है. Yes, ma'am. तो अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका छोटा नंबर लिया है, ये अगर बड़ा नंबर होगा तो, राइट? तो अभी यहाँ पे मैं 280 जो मेरा नंबर है वो मैं लिख डालूंगी. इज दिस क्लियर? नाउ 50%, अभी 50% ऑफ 280, 280 क्या है, 280 इज 100%, तो 50% कितना आएगा, 100, हाँ उसका हाफ 140. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 140. अच्छा 5% कैसे निकालूंगी, देखो 280, हाँ 280 इज 100%, ये मैंने देखा, राइट? तो 10% कितना, 28, तो 5% कितना होगा, 14, इसका हाफ, ये इसका हाफ, तो यहाँ पे 14. तो आंसर कितना आ गया, 126. तो ये साइड भी मेरा सेम आंसर आएगा. हाँ मैम. तो इसको ऐड करो और इसको करो, 126 प्लस 126, 12, 4, 5, 2, 262. तो 252. 252. समझा? 2 स्टेप पे आपका आंसर आपके सामने, ठीक है? Okay, Yes. okay. So these are the things that you need to concentrate on. कैसे करके मुझे करना है.
ओके, सिंपल एंड इजी स्टेप। 45 को मैंने 50 माइनस 5 में डिवाइड किया और फिर अच्छा मुझे आप लोग ये वाला फटाफट करके बताओ। 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 30% माइनस 2%, इसको 450 ले लो। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि आपको यहाँ पे 450 ये 100% है, राइट? तो 30% का कितना आएगा ऐसे? तो 30% अगर करने जाएंगे तो ये आपका थ्राइस में जा रहा है, Yes, ma'am. 130. राइट? 10% कितना है? 10% इज 45, 45. ठीक है? तो 45 का 45 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आपको 145 सॉरी 135, राइट? तो ये आपका आ गया 135। अभी आपको 2% निकालना है, तो 2% अभी निकालो फटाफट। 9. 2% इज 9, तो कितना आया आंसर? 126. आया ना? Yes, ma'am. समझा अभी कैसे करके करना है? Yes, ma'am. ठीक है, अभी 9 कैसे आया देखो। 45 अगर 10% है तो 1% कितना होगा? 4.5. 4.5, 45 डिवाइड बाय 10, राइट? तो 2% कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4.5 into 2. so 9. So 135 minus 9 will be your 126. Okay? Yes, ma'am. Okay, fine. सुनील समझा आपको? Yes, madam. Yeah. Okay. Next. Now here you are having that the two numbers. Okay, the two numbers are 28% and 20% less than the third number respectively. Then find that first number is what percentage of the second number. मतलब क्या बोला है आपको कि यहाँ पे आपके सामने 3 नंबर दिए गए हैं, 3 numbers are given in front of you. Yes or no? Okay. Right? और यहाँ पे हमारे सामने the two numbers मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो है उसका परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज कैसा बोला है कि इट इज लेस देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली ना। अभी ये परसेंटेज है तो हम लोग परसेंट को हम लोग को थर्ड नंबर वी डोंट नो, सो वी एज्यूम दैट लेट द थर्ड नंबर बी 100, 90%. राइट? लेट द थर्ड नंबर बी 100। अभी हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या रहेगा? इट इज 100 माइनस 28% ऑफ 100। Ma'am, 20%. sorry 20%। तो 100 माइनस 20 तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 80। लाइकवाइज फर्स्ट नंबर क्या है? 100 माइनस 28 बाय 100 इंटू 100, तो 100 माइनस 28 तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 72। तो मेरे पास अभी सामने 3 नंबर्स अच्छे से है। अभी मुझे फॉर्म करना है। क्या बोला है? फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर? यस और नो? अच्छा, ऐसे टाइप में, हाँ ऐसे टाइप में हमने अभी कुछ देर पहले ही सॉल्व किया है। ये देखो 72 upon 80 into 50 100. is what percent of 20? 50 is what percent of 20? Right? तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 72 is what percent of 80, तो मेरा न्यूमरेटर में क्या आएगा? 72, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 80 into 100, राइट? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 90%. So the right answer is 90%. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Okay. आगे करें? Okay. Yes.
Next. Now next one is, if the numerator of a fraction be increased by 15%. Numerator Right? of a fraction is Increased by 15%. Okay. And its denominator is decreased by 8%. Decreased by 8%. Okay. Then the new value of the fraction is 15 by 16. Find the original fraction. मुझे क्या बोला है, मेरे सामने दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. Yes, madam. राइट. और देखो, सपोज मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे 100 रुपीज किसी ने दिया था, राइट, और जब भी नेक्स्ट ईयर हुआ वो 10% से बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगी? आई विल 110 ऐड. अगर मैं यही चीज को बोलूंगी, अगर ये 10% से डिक्रीज हो गया, ओके, तो फिर मैं क्या लिखूंगी? 90%. तो ये जो नंबर है इसको मैं क्या बोलती हूँ? बेस वैल्यू. यस, राइट. दिस 100% इज नोन एज बेस वैल्यू. अभी यहाँ पे भी मैं वही रखूंगी कि न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो गया 15% से, और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 8% से डिक्रीज हो गया. तो मैंने क्या किया? 100 प्लस 15 एंड 100 माइनस 8. क्यों 100 कर रही हूँ? बिकॉज वी आर डूइंग परसेंटेज सम. तो परसेंट में लास्ट मेरा क्या रहता है? 100%. इज दैट क्लियर? और ये करने के बाद वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरा नया वैल्यू मिल रहा है, जो मुझे फ्रैक्शन मिल रहा है नया, वो कितना है? 15 by 16. हाँ. क्लियर है? तो अभी मैं क्या करूंगी? आई विल जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द आंसर. दैट्स इट. अभी आपको आंसर फाइंड आउट करके मुझे बताना है. इसको हम लोग 4 से कैंसिल करते हैं. 4 4 जा 423. इसको हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं. 5 3 जा and 2 10 3. So 23 will get cancelled and my answer will be 3:4. Okay. Is this clear? Yes, madam. खाली आपको क्या करना है? You need to frame this equation. This equation is must. Okay? Okay. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉल्यूशंस है. Now next, यहाँ पे this is again another type of sum. A student multiplies a number by 5. A student multiplies a number by 5 instead of dividing it by 5. तो अभी चलो let the number, मुझे नहीं पता, let the number be 100. हम लोग 100 से कर रहे हैं तो हम लोग 100 ही लेंगे. ठीक है. Let the number be 100. Do I know the number? नहीं पता है, तो हमने assume किया. तो अभी क्या बोला है कि स्टूडेंट को क्या करना था? स्टूडेंट को 5 से डिवाइड करना था. राइट. मेरा कितना आता था फिर? 100 डिवाइड बाय 5 20. लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरा आंसर कितना मिल गया मुझे? 500. ठीक है. अभी उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक. राइट. तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 2500. यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज 480. राइट. अभी यहाँ पे देखो 480 मेरा डिफरेंस आ रहा है. मैं अभी बेस कौन सा लूंगी? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे एक्सपेक्टेड क्या था? आई शुड गेट 20. राइट. मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या था कि मुझे 20 आंसर चाहिए, लेकिन मैंने निकाल दिया 500. गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? 20 इंटू यहाँ पे 100. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2400. यस, आंसर विल बी 2400%.
फाइन? यस मैडम। ओके, यस मैम। अभी नेक्स्ट वाला जो सम है वो आप मुझे करके बताओगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। फटाफट। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन है। A student subtract 5 from a number instead of adding 5%. 5, okay. What is the percent change in the result? नेटवर्क 10.53. 1 minute. Where I was okay. 95. अपन 20 किया था तो 105 करना था मैम। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Okay, 1 minute. Let me have that screen first. Okay, ठीक है, आप बोल रहे हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फाइन। यस मैम। एंड सुनील, व्हाट इज योर आंसर? Same answer, madam. 1 minute, where is that question? हाँ, सुनील, व्हाट इज योर आंसर? Cannot be determined. Same answer, madam. cannot be determined. Okay, Yes. तो अगर हम लोग Yes, देखेंगे madam. यहाँ पे we cannot determine the answer. क्यों? क्योंकि एक नंबर है 100, ठीक है, हमें क्या करना था? We have to add Add. 5, right? Okay. बट हमने क्या कर दिया? माइनस। हमने माइनस कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का। 10। 10. Yes, राइट, तो मेरा क्या था? मेरा 10 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड क्या है? 105 into 100. into 100. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ Yes. 200 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, which we Okay. cannot be, it is Determined. cannot be determined. Yes, ma'am. Okay, next. Yes. 200 डिवाइड बाय 21 आ रहा है। अच्छा, 200 डिवाइड बाय 21। 21, फाइन। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हमारा ऑप्शंस में वो आंसर है ही नहीं, राइट? हाँ, तो हम लोग क्या 9 लिखेंगे? कैन नॉट। कोई क्या करते हैं, 200 आया ना तो नीचे 21 को इग्नोर कर देते हैं और 200 को टिक कर देते हैं। तो अगेन दैट इज रॉन्ग। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि डिनोमिनेटर में 95 ले लो तो 10.53% आ जाता है। हाँ, तो मैंने वही बोला ना कि आपको हमेशा आपको ये देखना है कि हमें एक्सपेक्टेड क्या है, तो वो बेस लेना बहुत जरूरी है, बेस को। ठीक है, हमेशा याद रखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो वो आपका बेस वैल्यू आ जाएगा, बस और कुछ सोचो मत। Okay, fine. सो यहाँ पे मुझे एडिशन बोला है, दैट शुड बी माय बेस वैल्यू, बस। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नाउ दिस इज, यहाँ पे ये पढ़ो, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then by how much percent a man must reduce his consumption in order to have the same expenditure as before. अभी ये अलग टाइप का सम्स है, बट अगेन दिस इज परसेंटेज बेस्ड। अभी यहाँ पे देखो, मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताती हूँ। सपोज मैं बोल रही हूँ पहले मेरा सैलरी 100 था, ठीक है, फिर कंपनी वालों ने मुझे बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो 10% मुझे हाइक मिला। मेरा सैलरी अभी कितना हो गया? 110। 110।
वापिस से उन्होंने बोला नहीं हमारे पास पैसा नहीं है अभी तुमको देने के लिए, सो योर सैलरी विल बी डिडक्टेड बाय 10%, राइट? तो अभी हाँ। मुझे बताओ मेरा सैलरी कितना होगा? 99। कैसे? 110 का 10% लेस हो रहा है ना मैम, तो 11 माइनस समझा? होगा। 110 का आपको 10% लेस करना है, तो यहाँ पे मेरा लॉस कितना हुआ? समझा? मेरा लॉस Madam, one कितना हुआ? question arises here. Okay. हाँ. The price of the sugar is increased by 20, they told. Okay. We can take 120 here. Okay. Then by how much of percent can we make a man must can reduce the consumption? 12% से कम करना चाहिए मैम। ठीक है, मैं अभी मैं अभी वही क्वेश्चन में आ रही हूँ। अभी यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट समझा ना कि 110 के ऊपर 10%, तो तब जाकर 99 आ रहा है। Okay. राइट, अभी यही सम को हम लोग देखते हैं। पहले मैं क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो सोचो कि मैं पहले शुगर खरीदती थी एट द प्राइस ऑफ 100, राइट? बट आफ्टर दैट the price increased by 20%. The price increased by 20%. Now the price become 120. ये समझा? Okay. Yes, madam. अभी क्या बोला है? Then by how much percent a man must reduce his consumption? See, if we want to consume the same amount of sugar, then he need to pay 120 rupees. राइट लेकिन वो क्या बोल रहा है कि अभी अ मैन मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन ऑर्डर टू हैव द सेम एक्सपेंडिचर एज बिफोर। मतलब बोल रहा है कि अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं 100 ही पे करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कंजम्पशन लेस कर दूंगा। 100 minus 20. Yeah. गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब यहाँ पे -20 वो लेस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मेरा अभी देखो ये दोनों एक्सपेंडिचर सेम हुआ कि नहीं? बोथ द एक्सपेंडिचर आर सेम नाउ, बट द क्वेश्चन अराइज यहाँ पे मैं बेस वैल्यू किसको लूंगी? मैंने अभी आपको बोला ये जो 20 है ये हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 120 के ऊपर। समझा? हाँ मैम। राइट, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1/6। और 1/6 मीन्स व्हाट? हम लोगों ने किया था, इट इज 16.67%। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो मैंने वही बोला कि आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये शुगर का प्राइस है, शुगर का प्राइस बढ़ गया 20% से तो 120 आ गया। अभी अगर सोचो से फॉर एग्जाम्पल आप पहले 2 kg शुगर यूज करते थे, आप उसके लिए 100 रुपीज पे करते थे। अभी आपको वही 2 किलो का शुगर मिलेगा बट आपको 120 पे करने के लिए बोल रहे वो लोग। समझा? लेकिन आप क्या बोल रहे हो, नहीं मैं कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगी बट आई विल पे द सेम 100 रुपीज, राइट? बट वो कंजम्पशन जो है आप कितने परसेंट से रिड्यूस करोगे? फिर आप 16.67% से रिड्यूस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। हाँ सुनील, आवाज आ रहा है? Getting confused, madam. क्या हुआ, बोलो, पूछो। Madam, the price of the sugar is increased by 20%. हाँ, okay. हाँ. We'll get 120 here. Fine. 100 plus 20 is equal to 120. Okay. In the third line, they are saying reduce his consumption in order to have some expenditure. What is the expenditure here? Same as expenditure. Before they told. Yeah. Yes. As before they told. As before. Right. Yeah.
So let us take an example कि you are purchasing 2 kg of sugar at rupees 100. Right? Fine. ठीक है. Now the price increased by 20%. 120. Now the same 2 kilo sugar, for getting this 2 kilo sugar, now you need to pay 120. Fine. This is it. Okay. But this man is telling, no, I don't want to pay this 20 rupees extra. Okay. I will keep this 100 rupees as my expenditure. मैं क्या करूंगी? मैं मेरा expenditure को 100 ही रखूंगी. But I can reduce my consumption. Instead of 2 kg, I will go for I can go for reducing the consumption of my sugar. Right? But how much percentage do you reduce your consumption? Yes. So this is the question. Yes, ma'am. Yeah. तो फिर हम लोग ने क्या बोला कि ओके, उन्होंने क्या बोला है कि my expenditure will remain same. So see, this expenditure and this expenditure both are 100. Right? तो यहाँ पे मैं कितने परसेंट से रिड्यूस करूंगी? I will reduce it by 20%. It will become 80%, I think. Right? 20%. But 20% will be on 120. Okay, you are reducing here only, I think. Yes, yes. 120 minus 20. Okay. ठीक है. So 20 divided by 120 is equal to 1 by 6. 1 by 6. Okay. Is this clear now? Yes, ma'am. Okay. Now, same type of sum. Now tell me this. The price of the petrol got reduced by 25%. Then by how much percent a man must increase his consumption in order to have the same expenditure as before? $33.33. 33.33. हाँ, अभी आया. देखो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ऐसे चार्ट बना लेने का है. ठीक है. 100 से माइनस करेंगे 25% को, तो कितना आएगा मेरा? 75. राइट. और मेरा एक्सपेंडिचर को अभी क्या बोला है? सेम रखने के लिए. Yes, ma'am. Yeah. तो कितने से ऐड हो जाएगा ये? 25%. राइट. बट मेरा बेस क्या रहेगा? माय बेस विल बी 75. तो मैं कैसे बनाऊंगी? 25 डिवाइड बाय 75 into 100. राइट. तो कितना आ रहा है मेरा? 1/3. और 1/3 को हमने क्या बोला है? 33.33%. Yes, ma'am. Yeah. ओके. Okay. Yes, ma'am. समझा ना? अभी ये कैसे करके सॉल्व करना है ये सम को? Yes, ma'am. Yeah. ओके, चलो नेक्स्ट. Now this is another one. After spending 20% on clothes, 10% on books, and 9% on purchasing gifts, and 7% on others, a man is left with rupees 2,700. So how much money was there with him initially? सोचो और बोलो फटाफट. $5,000. 5,000. ओके, ठीक है. कैसे निकाला? अच्छा सुनील, आपका आंसर क्या आया? No, madam. Still, I'm not getting. I'm doing answer. Okay. Okay. 2,700. अच्छा. Into 100 means 80. 90%. कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. Sure. ओके. तो यहाँ पे देखो,
20% it is on clothes, 10% on books, 9% on gifts and 7% on your others. तो इसका टोटल करो and tell me the total. 30 and 16, तो 46%, right? 46%. तो अभी यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल माई परसेंटेज इज 100 में से मैंने 46% I spent on all these things. Yes, madam. Okay. Right? And now I am having only 54%. The Yes, remaining exactly. amount 100 minus Okay. 46. Yes. Okay. तो अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास अभी 54% अगर 2700 है तो 100% कितना होगा? Yes. So cross Exactly. multiply. 2700 into 100 divide by 54. 54. Yes, madam. ठीक है? Now you can calculate this. तो इसको आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो. इसको कट करो 9 से, कितना आएगा? The total will be 5,000. Yes. समझ में आया? Okay. ठीक है? So this is how you need to calculate the answer. Next. Yes. Now again, this is again something different. A man saves 30% of his salary and spends remaining. Man क्या कर रहा है? Suppose his salary is 100. He saves 30% और remaining क्या कर रहा है? He is spending. Alright. Now, out of this total savings, तो मेरा total savings कितना है? What is my total saving? 100 into 30%. 30. 30 only. Yeah. Right? तो उसमें से LIC को मैं कितना दे रही हूँ? 40% of 30. That means 12. Right? Shares को मैं कितना दे रही हूँ? 35% of 30 will be how much? It will be 10.5. And remaining on others. Others कितना आ रहा है? 75 आ रहा है ना, तो 25. Yes, madam. 25 of 30 मतलब कितना आ रहा है? 7.5. तो इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हमें 30 मिलेगा. 30. Yes. अभी ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अभी उन्होंने क्या बोला है? If the difference between the amount invested in LIC, this and others, ये दोनों में, ठीक है, डिफरेंस वो क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस कितना है? Is 135. लेकिन मेरे यहाँ पे देखो कितना एक्चुअल डिफरेंस दिख रहा है? 12 minus 7.5. 4.5%. 4.5%. ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ कि 4.5% is equal to 135, तो 1% कितना? तो मैं क्या करूंगी? I will calculate it. Okay. 135 divide by 4.5. राइट, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? पॉइंट को हटा दो. 30. राइट, लेकिन हमने क्या बोला है? 1 it means what? 100%. Yes or no? ठीक है, तो 30 into 100 will be how much? 3,000. 3,000. So your answer will be 3,000. Okay. Fine. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Next. वैशाली समझा? Yes, ma'am. Okay, चलो next. Now this is again a different type of sum. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है?
after an increase of 20% in the price of the sugar, a family is able to purchase 40 kg less for rupees 480. ठीक है, अभी यहाँ पे you have to find out what is the initial consumption. यहाँ से initial consumption आपका 200 kg है कि 220 kg है, किलो है, तो वो आपको find out करना पड़ेगा. ठीक है, या फाइनल कंजम्पशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? वो कितना है, या इनिशियल कॉस्ट आपको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं, चलो फटाफट. चलो, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या बोला है, इनिशियल कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन. अच्छा, हर एक बात खाली याद रखो, मेरा अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरा कंजम्पशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज. अगर कोई चीज मुझे आज 10 रुपए पे मिल रहा है, राइट, तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी. बट यही चीज का प्राइस अगर 1000 रुपीज हो गया, देन माय कंजम्पशन विल गो डाउन. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद द कंजम्पशन. फाइन, यस और नो? 240 इनिशियल कंजम्पशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग इनिशियल कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन का हम लोग एक टेबल बना लेंगे. P stands for price and C stands for consumption. तो मुझे इनिशियल प्राइस आई डोंट नो, ठीक है, और मुझे क्या बोला गया है कि द प्राइस इंक्रीज टू 20%. तो मेरा फाइनल प्राइस कितना हो गया, 120.